This conference will now be recorded. Break statement, right? Break statement. Let me start Anaconda. कुछ क्वेश्चन है? Any question? ये डाउट था। जो रेंज पे हम लोग ऐसे स्टार्ट स्टॉप स्टेप लेते हैं तो मैंडेटरी नहीं तीनों ले नहीं स्टार्ट एंड स्टार्ट आप स्टॉप को ले सकते हो, स्टार्ट होने से बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने बताया आपको। राइट, तीनों लेना है ऐसा नहीं है ना? नहीं, सिर्फ स्टॉप वाला आप ले सकते हो अगर बाय डिफॉल्ट स्टार्ट का 0 स्टॉप का। So this is what we have, concatenation, break statement, right? Let's start. Okay, so break statement, break the data. Okay, as we have discussed, let me close this. Okay, let's minimize this. Okay, so Python continuous statement opposition of break, which say even condition is not satisfied, continue the loop. एक ये था आपका, यहाँ पे break कर देगा Python वाला, right? Sorry, prime number वाला. So just okay, let me enter once. Prime number using break statement. Okay. ठीक है, reversible बनाए, sort of prime number. So it stopped this one. Okay, यहाँ पे stop कर देगा incremental को. All right, so what next? Continue statement, right? Continue statement means even the condition continue allowed to get in loop no matter condition is true or false. It just opposite है none का. Okay. So how it work? If we talk about so if intentionally, this is what condition true or false, and then why you are putting the condition. There's a terms condition means, and you're making some changes, right? Not in terms condition. You're not accepting the terms and condition. Means you are trying to do something intentionally, right? So if intentionally you want to run loop, even condition is false, you can use a break. Sorry, you can use continue statement only allow false condition to process as per the body of the code after continuous statement, right? You want to look when condition is false, you can use break. Sorry, ये statement थोड़ा गलत लग रहा है. ठीक है, continue. ठीक है, Python continue opposite of break. ये गलत दे दिया आप लिखिए. Break is to deserve continue for that. Continue statement only allow false condition to process.
ट्रू है तो एंटर करेंगे, फॉल्स के लिए भी एंटर ले लेगा एज पर द बॉडी ऑफ द कोड आफ्टर कंटिन्यूस स्टेटमेंट. सो सी हियर, if you select this is clear, right? This is what a list for number n x, x का number num में आएगा, num का condition check होगा, if num person mod 2, so 1 mod 2 condition false, ये लगा दिया कंटिन्यू. जैसे ही इसे कंटिन्यू मिला, बोला कि इसको वही प्रिंट कर दो नंबर, तो 1 2 3 4 5 सारे को प्रिंट कर देगा. क्लियर? लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. फॉल्स अगर कंटिन्यू होता तो एल्स पार्ट पे कंडीशन ट्रू रहता तब तो जाता ही जाता. हाँ. लेट मी जस्ट रन दिस. एल्स, ये एल्स इसका पार्ट नहीं है, ये एल्स इसका पार्ट नहीं है. ये एल्स, ये जब ये लूप यहाँ से खत्म हो जाएगा, राइट, तो ये लिस्ट इज ओवर बोल देगा. ठीक है, क्लियर है? तो ये आप ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो. कंटिन्यू स्टेटमेंट, राइट. कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है. इंडेंटेशन देखें आप, इंडेंटेशन लगा हुआ है, राइट. हेलो, we'll check onto that. Thank you. Yep. Right. यहाँ पे आया रे, प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है फिर, ना ऊपर क्यों नहीं थी यार. ठीक है. तो what are the condition false it's showing here? ओके. हाँ. ठीक है. It allow for only false condition. वन नंबर इफ स्टेटमेंट, इफ में वन नंबर, Right. There's all the odd number का रिमाइंडर से कभी 2 से डिवाइड के बाद 0 नहीं आएगा. It's showing you all this number 1 3 5. जो कंडीशन फेल हुआ उसका प्रिंट कर रहे हो. Right. 2 4, तो continuous statement allowed to get in loop no matter condition is true or false. Right. If intentionally you want to run the loop even condition is false, continuous statement only allow false condition to process as the body of the code. Okay. So chalo, make it fast. 2 minutes.
अगर आपको इवन ठीक है, अगर आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करवाना तो क्या करोगे? व्हाट चेंजेस विल डू इफ यू वांट टू प्रिंट इवन नंबर और कंटिन्यूअस स्टेटमेंट भी रखना है? यू गॉट माय पॉइंट? यहाँ पे if के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट डाल के एग्जैक्टली, यहाँ पे प्रिंट डाल देंगे मैं वैसे कर और यहाँ पे इसको उठा के हम ऊपर में डाल देंगे, कंटिन्यू में कुछ प्रिंट रखेंगे। क्लियर है? चलो गुड। इंडेंटेशन का थोड़ा हम्म, इंडेंटेशन if के अंदर कंटिन्यू आएगा, नहीं नहीं एक मिनट, कंटिन्यू ठीक है। इफ के अंदर ही है ना यार, यहाँ से 4 स्टेप 1 2 3 4 क्या कर? अगर वो फेल होगा तो बाहर आएगा ना कंटिन्यू। इफ हाँ फेल क्यों? फेल के लिए थोड़ी बात, फेल के लिए ये होता है, फेल के लिए कंडीशन, फेल के लिए तो एक्सेप्ट करता है ना। ओके लेट मी हेल्प यू। यहाँ पे 1 आया, राइट? राइट, इफ नंबर परसेंट मॉड 2, राइट? यहाँ 1/2 आया, राइट? यहाँ पे बोला प्रिंट करो नंबर, राइट? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा नंबर, राइट? ये कंडीशन, बट वो 1 यहाँ तक फिर लेके आया, राइट? कंटिन्यू करवाया ना, राइट? यहाँ पे तो कुछ दिए नहीं ना आप, तो कहाँ से करेगा? यहाँ प्रिंट कर दो, यहाँ पे लिख देगा 1 2 4 5। क्लियर है? फिर 2 लिया, कंडीशन ट्रू हो गया, राइट? प्रिंट नंबर, जो कंडीशन ट्रू हुआ था, ये तो इफ ये हटा दोगे तो ये इफ कंडीशन ही हो गया ना, राइट? कंटिन्यू का मतलब कोई यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट किया नहीं है आपने। देखो आ गया, ये यहाँ से इवन नंबर उठा लिया, यहाँ से ऑड नंबर उठा लिया। क्लियर है? चलो, so this is how right. So this is what statement you have? It's a break statement. Break statement say what? It, sorry, continue statement, continue statement है ना, continue, break के ऊपर। तो continue statement say what? If in any loop, if you write the continue statement only allow for false condition to process as per the body of the code, and this is how we write it. So x1 for loop पे यहाँ से value उठाया, right? X is here, move number in x, right? 1 by 1 value लिया, right? यहाँ पे condition check किया, and this condition not match, so it give you the output for this. Clear? Any question? Okay. You want to print only even number. ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि all right. What next? List creation and operation. Now we'll check. ये हो गया आपका cases with no. Now we'll talk about the list tuple. अब यहाँ से सारा आपका ऑपरेशन स्टार्ट होगा। लिस्ट के जितने ऑपरेशंस हैं, राइट? उसके बाद राइट विल स्टार्ट टपल, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखते हैं सारी लिस्ट के ऑपरेशन मैट्रिक्स एंड ऑल द थिंग।
फिर उसके बाद टपल के सारे ऑपरेशन स्टार्ट होंगे आपके। तो एवरी मॉडल टेक वन सेशन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। ओके, ये थ्रोली जाएंगे। नाउ लेट्स क्लोज, close and hold. Okay, and बनाते हैं यह डॉक्यूमेंट 0.4 0.5। ओके, ठीक है, लिस्ट डाल दिया। What we have learned in the list टपल का हम लोगों ने पढ़ा था। Let's quick revision. Okay, list sign is this, right? This all the topics belongs to collection. Collection हर topic हर programming language पढ़ा जाता है, Java, .NET, Perl, Python, Ruby. It actually store homogeneous, non-homogeneous set of data. Okay, in terms of homogeneous or non-homogeneous, in terms of memory indexing. So as per, so list is what? It hold the non-homogeneous data. Non-homogeneous data, integer, float, double, जैसे array क्या होता है? It store what? Homogeneous data. So it holds what? Non-homogeneous record, right? FIFO फर्स्ट इन इंडेक्स रहता है, इसलिए आप उसको ऑर्डर से निकाल सकते हो। इंडेक्स यानी पोजीशन, उसका एड्रेस रहेगा 0 1 2 3 4, राइट? सो इट स्टार्ट फ्रॉम 0, रिमेंबर। सो FIFO इज इंडेक्स, सो यू कैन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहला है वो जो पहला है पहले, लाइक अ क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे होता है। या इट्स इम्यूटेबल, द वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, आप अपडेट नहीं कर सकते किसी रिकॉर्ड को, राइट? सो दिस इज व्हाट? लिस्ट। अगर आप बोलो कि नहीं मुझे चेंज करना है वैल्यू को, वैल्यू डालने के बाद, तो इट्स बेटर यूज द टपल, डोंट यूज द लिस्ट। इफ यू नो द रिक्वायरमेंट कि यू वांट टू चेंज इन योर रिकॉर्ड जो आप डाल रहे हो, तो यू बेटर यूज द टपल देन लिस्ट, ठीक है? तो लिस्ट टपल का ये रहता है, राइट? FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मिक्स्ड, ओके। इम्यूटेबल मतलब इसको आप immutable set are known as, hey sorry my mistake, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो okay, that is why I've written there. ये immutable क्या होता है? फ्रोजन रहता है। ओके, फ्रोजन मतलब you cannot make the changes. Immutable मतलब you can make the changes. If you think you don't want to make any changes in the value which you have set, it like generally batch processing, like transaction record, right? Unique number, okay. So it's better you make it tuple where you think that the value which I have inserted, it should, there's no requirement for the changes, so आप tuple use करो। ये सारा फीचर्स आपको लिस्ट का देगा, बट लिस्ट में क्या है? वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टपल में चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। और हाउ टू डिफाइन लिस्ट और टपल? ये ब्रैकेट टपल में भी इंडेक्स होता बिल्कुल होता है, ये भी सारा फीचर्स है फर्स्ट एंड फर्स्ट वर्ड, जस्ट ये चेंज और अनचेंज की बात है, ठीक है? तो यार आज लिस्ट का सारा ऑपरेशन होता है, ठीक है? व्हाट इज ऑल अबाउट लिस्ट? हम लोग लिस्ट का कुछ ऑपरेशन ऑलरेडी कर लिए थे, अभी थोड़ा में जाते हैं लिस्ट का। ऑलराइट, तो अपने यहाँ पे चलो रिकॉर्ड हो रहा है। लिस्ट क्रिएशन यहाँ से ना 1 2 11, चलो ठीक है। लिस्ट क्रिएशन एंड ऑपरेशन, राइट? थोड़ा एक डिफरेंट अप्रोच से लेते हैं, ओके? एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट लिस्ट नेम इज व्हाट कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट, इसमें कुछ नहीं है, नथिंग यू हैव। अब इसको हम LST
ठीक है, एक और लिस्ट बनाते हैं 1 2 3 4 लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जरूरी नहीं है कि आप इसमें स्ट्रिंग ही डालिए, आप नॉन होमोजेनियस भी डाल सकते हो, कोई भी डिफरेंट डेटा है, बट मैं 1 2 3 4 ही ले रहा हूँ। LST1 में क्या होगा, मैंने लिया 1 2 3 4 लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। LST2 में क्या लिया मैंने, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट क्या है, इसके अंदर एक लिस्ट डाले, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, समझ गया। लिस्ट के अंदर ठीक है, ज्यादा क्लियर दिख रहा है। लिस्ट के अंदर एक मैंने लिस्ट बना दी है, तो आप ऐसे भी लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। अब एक और लिस्ट मैंने क्रिएट किया जिसमें नॉन होमोजेनियस डेटा में डाला, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, 1 इंटीजर नेम इंटीजर, फिर ये फ्लोट, ठीक है। दिस ऑल द ऑपरेशन यू कैन डू इट, दिस इज द डिफरेंट अप्रोच टू क्रिएट द लिस्ट। वो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप डालोगे। अब यहाँ पे क्या है, LST3 श्याम। अब यहाँ पे देखो LST3 है ना, ठीक है। मैंने रामू को हटा के श्याम डाल दिया, क्योंकि चेंज कर सकते हैं ना, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे मैंने पोजीशन, यहाँ पे लिस्ट का पोजीशन कह सकता है 0 1, राइट। तो पहले आप ऑपरेशन पोजीशन बताइए कहाँ पे आपको चेंज करना है। LST3 और फिर मैंने डाल दिया श्याम। फिर आप प्रिंट LST3 डालो तो उसको आपको दिखाएगा श्याम, यहाँ पे दिखाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखो LST2 में क्या करते हैं, LST2 में क्या है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो देखो ये 0 हो गया, अगर ऐसे रीड करते 0 1 2 इस लिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर वाला, ठीक है। अब इसके लिस्ट के अंदर भी होगा पोजीशन 0 1, तो हम यहाँ पे दो पोजीशन डाल रहे हैं, LST2, ठीक है। LST2 में 1 है ना, ये है ना 1 पोजीशन 1 पे हम चेंज करना चाहते हैं, मतलब इसको चेंज करके 5 डालना चाहते हैं। यहाँ पे हम 5 डालना चाहते हैं, तो सिंटेक्स आएगा LST2 इंडेक्स 1, तो अमंग दिस ये इंडेक्स 1 होगा, कौन सा, ये आएगा। अब इसके अंदर भी लिस्ट है, इस पोजीशन का हम डबल लिखें 1 पोजीशन पे ये आएगा, तो वैल्यू 5 डाल दिया। क्लियर, राइट। दो ब्रैकेट्स है ना, यार क्रिएट कर देता हूँ, नहीं ये वाला, हाँ डबल ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट। लिस्ट का कुछ भी आप पोजीशन भी लिखते हो तो यार सिंपल सा है, कुछ भी आप डालोगे लिस्ट पोजीशन, ये ऐसा होना चाहिए, बोला इसके अंदर वैल्यू पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रिंट LST3 1, LST3 राइट, 1 पोजीशन पे क्या है, शाम हो जाएगा ना, ठीक है। प्रिंट LST3 ये पूरा दिखाएगा, ठीक है। प्रिंट LST2 में क्या दिखाएगा, ये पूरा दिखाएगा, अगर आप जो चेंजेस करना चाहते देखियो वो देखना चाहते हो। क्लियर, तो आउटपुट इस तरह से आएगा। लेट मी रन दिस। सो एक एम्प्टी लिस्ट आप बना लेते हैं, लिस्ट क्रिएशन एंड ऑपरेशन। ओके, तो these are the approach to create the list, ठीक है। ऑलराइट, ऐसे निकले। अब यहाँ पे ऑपरेशन डालते हैं, LST3 1 श्याम, कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ देखो
ये श्याम आ गया, LST3 में जो वन पोजीशन पे क्या था, रामू था। आई मेक द चेंजेस श्याम, यहाँ पे श्याम दिख रहा है, सॉरी इसका प्रिंट, ये श्याम बता दिया, श्याम है यहाँ पर, चेंजेस डन। अब इसमें LST3 का पूरा वैल्यू बताओ मुझे, 1 श्याम 24 124, ये आ गया, सिर्फ एक चेंजेस यहाँ पे दिखा। LST2 में मैंने क्या किया था, LST2 में ये वैल्यू पे 3 4 की जगह 5 डाला था, 3 के 5 आ गया। ठीक है, ऑपरेशन वाइज कैसे अपडेट करते हैं इसमें आपको समझ में आ गया। और अब ये देखिए, इसी ऑपरेशन में मैंने एक और LST3 में मैंने क्या किया, ऐड किया हाई। LST3 क्या है आपका इसमें है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे जाके पोजीशन पे जाएगा, अगर नहीं डिफाइन करोगे 0 1 2 3 लास्ट में आएगा बिकॉज इट्स राइट। नाउ सी हियर LST3 मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, LST3 है। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, देखो LST3, अब यहाँ पे प्रिंट LST3 डालो, दो बार कर दिया, दो बार कर दिया LST3, शाम आया था। ये दो बार एग्जीक्यूट हो गया क्या, हाँ प्लस साइन है ना, तो 2 बार हो गया। ओके, ये ऑपरेशन हुआ राइट, ठीक है, दिस इज द वन वे टू रन दिस, ओके, दिस इज द वन वे टू रन दिस, ओके। नेक्स्ट अपेंड, दो ऑपरेशन होता है, डिफरेंसेस में देखो क्या होता है। LST3 डॉट अपेंड हेलो, यहाँ पे आप या ऐसे कर सकते हो या शॉर्ट हैंड से अटेंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद देखेंगे अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। चलो यहाँ से इसको आप इसको भी डाल दो, तो ये क्या बोल रहा है आपको, LST3 फिर से डालो, ठीक है, क्लियर है। सेम ही है दोनों, दो ऑल्टरनेटिव मिला आपको अपेंड करने का, रिकॉर्ड इंसर्ट करने का, राइट। तो अपेंड LST3 डॉट अपेंड हेलो और LST3, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो LST1 इंसर्ट, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पोजीशन डिफाइन कर दिया, राइट। LST1, अब LST1 पे जो LST1, ओके, 0 1 2, ठीक है, मैं जस्ट रन दिस, अब यहाँ पर प्रिंट LST करो, वन टू थ्री, थ्री पे हेलो आएगा, हाँ ठीक है। LST1 कहाँ गया, LST1 है, 1 2, 0 1 2 पोजीशन क्या था, 2 था ना, तो ओके लेट मी डू इट, 0 1 2, ठीक है, ये पोजीशन पे आ गया आपको हेलो, बट वाई दो टाइम से दिखा रहा है, यहाँ पे भी दो टाइम प्रिंट, वही ना, यहाँ पे लिस्ट पे हमने प्लस साइन दिया था तो हाई हाई 2 बार हो गया, यू शुड रिमूव प्लस साइन, लेकिन यहाँ लिस्ट 1 को तो हमने अपडेट नहीं किया था। जस्ट रन इट ऑन योर मशीन, ये मैंने बाय डिफॉल्ट दो बार तो क्लिक नहीं कर दिया, ये मैं एक मिनट रुक जाओ,
मैं कमांड आपको व्हाट्सएप कर दिया। हाँ देखो, व्हाट्सएप पे मैंने कमांड भेजा, चलो उसको जल्दी से। Yes, can you run? Done.
क्या हुआ? हम्म, क्या बोल रहे हो? हो रहा है? 2 बार क्यों हो रहा था? पे 2 बार आ रहा है क्या? नहीं हम्म नहीं हम्म, एक मिनट यार, सबको क्या हुआ? इंसर्ट पे 2 आ रहे थे ना, यहाँ पे एक ही आ रहा ये कर रहा ना, लिस्ट आउट इंसर्ट 1 पे 1 आ रहा है ना। ऑरेंज वाला, तो ऑरेंज 1 रहा। मुझे तो थोड़ा डाउट था। हम्म चलो ठीक है, इसको मैं देखता हूँ क्यों ये 2 बार, ये हाई भी एक ही बार आ रहा है ना, LST 3+1 करके। हम्म ओके चलो रिमूव करते हैं, ठीक है। एक बार ही आना है, हम्म एक बार ही आना है, ऐड किया था। एक ही आ रहा है ना, एक ही तो आ रहा मेरा पता नहीं क्यों 2 दिखा रहा है, ये मेरा इशू है इसका। लॉजिक वाइज एक ही आना चाहिए है। क्या? LST रिमूव 2, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट इसको उठा के देख कर दे। वैल्यू डाल दिया, डॉट LST LST ठीक है, अब ये प्रिंट करो। ठीक है 1 3 4 राइट, 1 3 4 आ रहा है, ओके क्लियर है। So you can directly write the name, it will move that, delete the record on that. So from this list 1 2 3 4, okay append सीख गए, insert का, ठीक है। This is the one way, this is the one way, अगर if you want to append from the position point of view, then you can use insert, okay। तो तीनों भी ऐड करता है, अपेंड भी ऐड करता है। ये इसका सिंटेक्स अलग है, इसका ये है ब्रैकेट राइट, इसका सिंटेक्स अलग है, डिफरेंट वे ऑफ एडिंग, राइट। यहाँ पे भी चला के देखो, पोजीशन से काम करता है, ओके जस्ट राइट बाय पोजीशन डाल कितना है, LS3 में कितना आउटपुट है, LS3 में 1 2 3 4 4 पे डाल दो, ठीक है राइट, कॉमा ये नहीं होना चाहिए, ओके
ठीक है। हम्म, Let's try this. काम नहीं करेगा। X is not in the list. Oh, ये तो ऑलरेडी मूव कर गया ना यार। ठीक है, हाँ, चलो। Three append X exactly one argument, right? So ये नहीं काम करेगा, हम्म, समझ गया? सिंगल आर्गुमेंट ओके, लेता है, बस पोजीशन पे डाला तो इंसर्ट यूज इंसर्ट यूज करना है। क्लियर है? ऑलराइट। करना। ठीक है, अब append and extend में क्या डिफरेंस है? append and extend, मार्कडाउन हेडिंग क्या है यार? मार्कडाउन चलता है, ठीक है। अब ये append and extend दो लिस्ट क्रिएट करते हैं, रख के 1 2 3 4 5 6, ठीक है। केस 1 LST को वो याद है, राइट? अपेंड दोनों को ऐड कर दो, 1 2 3 4 5 6 होगा। केस 1 LST append LST1, list dot append list1 दोनों लिस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। So if you want to add a tool list, this how work. ठीक है, क्या हो यार? LST है, इसमें क्या सॉरी, प्रिंट करा, print list1 यहाँ पे हम ऐसे बता सकते हैं ना, प्रिंट LST1 LST1। Let's try like this, none। नन क्यों दिया ये चीज? ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 5 6 5 6, ये मैंने 2 बार चला दिया इसलिए हुआ ऐसा। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, या 2-3 बार चला दोगे तो वो जो मेरा इशू है शायद मैंने 2 बार हिट कर दिया, इसलिए हाई हाई दोबारा आ गया। ठीक है, अब इसको आप चेंजेस भी करोगे, ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ऐड होल्ड इनटू द रिकॉर्ड। और इसको हटा के इफ यू मेक एनी चेंजेस देन इट विल रिपीट दैट। ओके, LST 1 पे क्या होगा? अभी कुछ नहीं होगा। क्यों? LST एक मिनट, इधर छोड़िए, इधर छोड़िए, इधर क्या नहीं होगा? अगर LST 1 कीजिए, प्रिंट LST 1 ऐड करने के होगा ना? ये ठीक है, LST में जाके अपेंड हो रहा है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। Any question? चलना? Okay. What next? अभी अब देखो, it's case 1. देखो, केस 2। ओके, केस 2 में क्या करता हूँ, ये अपेंड करके किया था, राइट? LST एक्सटेंड LST1। ओके, लिस्ट को वैल्यू को ऐड करेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट है फिर से चल गया क्या यार? 1 2 फिर से चल गया। ठीक है, ये चला है तो ये फिर से चल गया, इसलिए ये प्रिंट है। ओके, छोटे मार्क। ओके चलो, सी समझ गया, राइट? अब देखो 1 2 लिस्ट, राइट? inside one list showing, right? You understand? Right? Understand? एक लिस्ट इसका वैल्यू है, उसके अंदर इसका जो अपेंड हुआ है वो लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर नहीं दिखा रहा, there's a 2 list inside the list दिखा रहा, right? So let's say LST extend करते हैं and then I write this statement. Okay, done. अरे यार, ये ऊपर से ले लिया। रुक जाओ एक मिनट, इसको मैं LST को चेंज करके करता हूँ, ठीक है? बस ये बेटा था, ठीक है? ये बेटा है, ये बार बार यहाँ से कॉमन हो जा रहा है तो हो जा रहा है, कंफ्यूज नहीं करे मुझे। तो लेट्स राइट दिस, ठीक है? अब क्लियर है? केस 2 1 2। अब इनका स्टेटमेंट देखिए, राइट? प्रिंटिंग, ठीक है?
1 2 3 4 again one inside the list, one list is showing because it's been there. और यहाँ पे a single list is showing. It's more transparent, right? ठीक है. So this is what your append and extend, right? Okay. Delete और pop. Delete भी वही काम करता है, pop भी वही काम करता है, but you have to understand the difference of delete and pop. Okay. Sorry. So delete and pop. Okay. वहां पे हमने एक डेटा कैसे डिलीट किया था? रिमूव, राइट? ठीक है. चलो. रिमूव लास्ट वैल्यू को निकाला था. लास्ट को नहीं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाला था, पोजीशन नहीं हाँ, रहा, हाँ. बीच वाले वैल्यू को निकाला था. तो वो जाके वो उसको पाथ वैल्यू मिल गया, राइट? तो एड्रेस मिल गया, वो डिलीट कर दिया. You have not defined any position here, right? अभी देखिए. डिलीट. अरे यार, फिर से वही LST1 यहाँ गया, उसको उठा के. ठीक है. तो ये ऊपर वाला ले लेगा फिर से. डिलीट LST1, राइट? क्या करेगा? If you delete LST1 based on index position, it will delete. ठीक है. 1 0 पे क्या था? 1 पे क्या था? 2 तो यहाँ पे आपने पोजीशन डिफाइन किया है, ना कि वैल्यू. ओके, एलिमेंट नहीं डिफाइन किया. So it's a position based on a position actual index, it will delete it, right? अब केस टू करते हैं. LST 1 2 3 4 फिर से लिया. क्या LST pop, यहाँ पे क्या लिखा था ना? डिलीट LST. दोनों एक ही काम कर रहा है. ठीक है. और इसको मैंने होल्ड कर दिया A में. ठीक है. अब ये प्रिंट A, मतलब ये क्या कर रहा है? जो डेटा डिलीटेड है उसको डिलीट नहीं किया परमानेंटली, उसको कहीं पे जाके होल्ड कर दिया. वो आपको लिस्ट में नहीं दिखाएगा. Understand? But if you want to reuse in future, all right, then you can recover. Pop will store the deleted value. वो वहां से उसको रिमूव किया और वो किसी वैल्यू में जाके होल्ड कर दिया. क्लियर सर? बट डिलीट को हम ऐसे स्टोर नहीं कर सकते. नहीं. ओके, ट्राई कर लो. देखिए ना, डिलीट कहाँ गया? डिलीट डिलीट अभी किया नहीं, ट्राई करते हैं. ठीक है. डिलीट A is equal to delete. सिंटेक्स एरर, राइट? समझ गया? तो we cannot hold this, so we have to write a statement and make sure the output is. ठीक है. इसको पूरे को यहाँ ले लेते हैं. केस 2. ओके. तो किया हुआ ये LST1 LST क्या ले रहा है? इसको हटा दो ना, इसका तो कोई काम हो ही नहीं रहा. ठीक है.
मतलब वो किसी वो मधुमक्खी इसको सेंस कर दिया उसने। ठीक है। तो एक होता टर्न के, जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे, स्कूल छोड़ो, परमानेंट डिलीट होता है ना, रिसाइकल बिन होता है, व्हाट आप करते हो ना विंडोज में, वही तो हो रहा है यहाँ, राइट। डिलीट कर दो तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, रीयूज होता है तो वहां से आप उठा के ले आते हो, बट इट विल नॉट रिलीज योर मेमोरी, राइट, स्टोरेज, राइट। परमानेंट डिलीट, डिलीट हो गया, राइट। So this is what pop. Okay, clear? Delete we pass the index and remove we pass the value. ये हमेशा याद रखना, ये पोजीशन इंडेक्स बताता है, राइट, बट ये बता रहा है कि पास द वैल्यू। वैल्यू कहाँ बताया यार, 2 को उड़ाया तो 0 1, फिर ना पॉप 1 पे 2 था, तो ये पॉप 1। यहाँ पे वैल्यू क्यों लिखते हैं हम, चलिए सारा चेक कंफ्यूजिंग। ठीक है, लिस्ट क्लियर, लिस्ट रिलेटेड कीवर्ड्स इन पाइथन, लिस्ट में कीवर्ड भी यूज होता है, इन जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, नॉट इन, राइट। ठीक है, चलो ये स्टार्ट करते हैं। in and not in, right? रवन को ठीक है, list lst 1 2 3 4, right, clear, lst is equal to 1 2 3 4, all right, 1 2 3 4. If 2 in list, then condition if true, then print it. If not in, if not in, print. Simple है, 5 नॉट लेस में। तो वही वाला in और not in, और कुछ नहीं स्टेटमेंट, ठीक है। अगर है इंस्टेंस वर्ड चेक करने वाला, राइट, ठीक है,
इंस्टेंस चेक करने वाला, ओके। अगर if I will not in, क्या मैंने कंट्रोल सी, सिक्स डाल दे इसमें, किसने प्रिंट किया? ओके, कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। क्लियर है? ऑलराइट, रिवर्स ओके। कीवर्ड है, अगर वैल्यू को रिवर्स कर देना है 4 3 2 1, तो डायरेक्ट कोडिंग से भी कर सकते हो, राइट। आप डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन कीवर्ड है उसको कॉल कर लो, ओके। st डॉट रिवर्स प्रिंट कर दो 4 3 2 1, क्लियर। शॉर्टिंग, शॉर्टेड राइट, तो ये सारे फंक्शन है छोटे छोटे जो आपको डायरेक्टली लिस्ट में यूज कर सकते हो, आप यूज करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। होल्ड कर लिए, जो शॉर्टर का वैल्यू रखा वी में होल्ड कर लिया, तो देखो यहाँ पे सी, हाँ होल्ड कर लिया मैंने वैल्यू, ठीक है। C इज इक्वल टू शॉर्टेड, क्या है ए, तो फंक्शन का सॉर्टेड, हाँ जो शॉर्टेड C सॉर्टेड A रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पे एक नया चीज मिलेगा, इट विल प्रिंट डिसेंडिंग ऑर्डर वैल्यू। अगर आप देखो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेड A लिखा है ना, राइट, तो ये बाय डिफॉल्ट ये रिवर्स फॉल्स हो गया। बी में सॉर्टेड वैल्यू से बी इक्वल नहीं 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 मैं यहाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, ये पैरामीटर एक्चुअली एडेड रहते हैं यहाँ पर, देखो कहाँ ये शॉर्टिंग या शॉर्टिंग लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे ये एक्चुअली आप फॉल्स कर दोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा रहेगा, यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेगा, दैट्स इट। सो ठीक है, यहाँ पे डॉट लगाया है, रिवर्स कहाँ पे दिखा रहा है, ये इतना सारा ऑप्शन है, और ठीक है बहुत सारी चीज है डाल सकते हो, बट जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपका रिवर्स इक्वल टू अगर आप डालोगे, ठीक है, मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा चेक कर सकते हो सारे फंक्शन क्या क्या डाल, कितने आर्गुमेंट आप पास कर सकते हो, ओके। क्या लिखा है यार ये, अच्छा यहाँ पे लगाया नहीं, इसको प्रिंट करोगे ना बी को, राइट। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, राइट, ओके। अब यही चीज को मैं रिवर्स करके डिसेंडिंग, नहीं 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 नहीं, सी ए को लो रहा हूँ मैं, ठीक है,
ये तो बी का वैल्यू हो गया ना। हाँ, सी को वही मैं लिख रहा हूँ, सी कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ, सॉर्टेड लिख रहा हूँ, SORTED सॉर्टेड। ठीक है, ये पास किया था ना मैंने, ए राइट, मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, रिवर्स। ठीक है, इक्वल टू ट्रू। ठीक है राइट, मैंने एक और आर्गुमेंट इसमें सिंगल डाला राइट, इसमें एक और आर्गुमेंट डाल दिया। अब मैं प्रिंट करता हूँ सी को। डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, ये असेंडिंग ऑर्डर में किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। अगर इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ, लेट मी डू दैट। चलो इसको नहीं करता हूँ, चले जाता हूँ, डी ले लेते हैं। ठीक है, डी इक्वल टू और यहाँ पे डाल दो प्रिंट डी। ठीक है, जो कि ऑलरेडी वही दे रहा है जो आपको। तो बाय डिफॉल्ट ट्रू का वैल्यू क्या और रिवर्स का वैल्यू क्या होता है, फॉल्स। क्लियर। चेक करने का बेस्ट ऑप्शन है। ओके, default value of reverse false। क्लियर है। ओके, तो ये शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। फ्लोट वैल्यू अगर आपको लाना है पहले, ठीक है, केस 2 कितना, बाकी वो आज केस 3 पे जाके छोड़ते हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट, आज फ्राइडे थर्सडे है ना, थोड़ा ये है लेंदी चीज है, तो ये कल जाएगा, कल तक जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद ये टप्पल स्टार्ट करेंगे। फ्लोट वैल्यू कम फर्स्ट, अब ये केस 2 डाल दो। बताइए, 1959 कुछ है ना, फ्लोट नंबर बीच बीच में डाला हुआ है। A1 इज इक्वल टू 1 2 3 4, अभी शॉर्टेड आपको समझ में आ जाएगा क्या किया आप। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और होगा, एक चीज इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ देखो, इसको 1 बाय 1 लेके जाते हैं। ले लिया वैल्यू, फ्लोट। अब ये बताओ 1959.2 राइट, 2.0 और 2 में पहले कौन आएगा वैल्यू, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा ना, तो 2 और 2.0 में असेंडिंग में पहले कौन आएगा, 2.0। क्यों, 2 आएगा ना, फ्लोट पहले आता है, यू राइट, ये फ्लोट को पहले वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, तो प्रायोरिटी इट्स फ्लोट इज हायर देन इंटीजर, दैट इज मीन टू से, अगर आप 1 2 कर देते तो ये वैल्यू बड़ा छोटा हो जाता है राइट, तो वो आ जाता है, लेकिन 2.02 में आया तो फ्लोट पहले आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझ गए आप। ठीक है, -5 1 2.0 2 5 9 9 9.2
तो बड़ा वैल्यू ऑफ कोर्स आएगा। हम्म, क्लियर है? अब ये बी शॉर्टेड ए, ठीक है, बी शॉर्टेड ए, B1, ये क्या किया है? अच्छा बी को प्रिंट किया, ठीक है। अच्छा B1 शॉर्टेड A1 क्या होगा बताओ? B1 में क्या होगा? 132 क्यों आ रहा है? B1 अल्फाबेटिकली शॉर्टेड है, टी ओके, टी राइट, क्योंकि अल्फाबेटिक एच शॉर्ट पहले आता है इसलिए हम्म, बाद में किया। क्लियर है? हम्म, ओवरराइड तो मल्टीपल लिस्ट पे लिस्ट डाल के उसको सॉर्ट कर सकते हैं। कीजिए। अगर लिस्ट पे ये है और करो, अब ये चीज है अभी ये करो, अब जाओ घर पे, जो भी दिमाग मारे हिट एंड ट्रायल मारो, देखो सारा चीज तो आपके सामने ही दिखेगा। ठीक है, जो भी कुछ आ रहा है पूछो नहीं, हिट करो, तुरंत चेक करो। ठीक है, मे बी मैं यहाँ पे वो सारा कुछ केस यूज केस नहीं डाल रहा हूँ, तो आपका जो जा रहा है वो कीजिए और शेयर कीजिए, यहाँ से ये चीज ऐसे हो रहा है, इफ नॉट क्लियर लेट मी नो। तो ओवरराइड करते हैं क्योंकि इसमें अपडेट हो सकता है रिकॉर्ड। तो LST, एक LST1 ले लिया, क्या मैंने ब्लैंक ले लिया, राइट? हम्म, 1 2 3 4 LST ब्लैंक लिया। अब LST में LST1 को डाल दिया, समझे ना? LST1 में LST को भी मैंने शायद ब्लैंक कर दिया, ठीक है। LST1 इज ब्लैंक राइट, मैंने इसको इससे असाइन कर दिया। अब LST1 डॉट अपेंड, LST1 डॉट अपेंड 4 क्या करेगा बताइए? ये ऑपरेशन क्या करेगा? असाइन कर देगा उसको जो भी वैल्यू हम अपेंड राइट, अपेंड में अगर हम 4 डालते हैं तो क्या लेता है, वैल्यू और पोजीशन? वैल्यू लेता है, कहाँ पर डालेगा? लिस्ट पे डालेगा, हम्म 0 1 0 1 2 3 5 की जगह डालेगा। चलो 5 की जगह पर डालेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू योर। ओवरराइट केस, बताइए क्यों हुआ ऐसा? टिकट है। नहीं समझे? इसको भी ब्लैंक कर दिया ना यार। असाइन जब असाइन किया तो उसको ब्लैंक कर दिया। नहीं यहाँ देखो, LST में इतना सारा डेटा था, बोला क्या, और LST को मैंने ब्लैंक कर दिया, LST1 को ब्लैंक रखा, राइट? मैंने LST में क्या किया, LST1 का डेटा डाल दिया। LST1 क्या था, ब्लैंक था, तो ये सारा भी अब ये भूल गया, ये तो चला गया, जो LST वैसे ही यही हो गया, राइट? तो LST1 में मैंने अपेंड किया 4, तो यहाँ पे क्या है, LST1 और LST1 बोथ विल सेम, तो दोनों में 4 चला गया, बिकॉज बोथ आर नो सिमिलर। अगर हाँ जो मैंने बोला था वो कब काम करेगा पता है, LST1 इक्वल टू LST किया तो यहाँ पे एक और करो, LST में, अब LST में अब ये बताओ क्या होगा, LST में मैंने 3 डाला, क्या होगा बताइए आप?
ये लिस्ट ही पे हाँ $3। सोचो बताओ 4,3 आएगा किस में। प्रिंट लिस्ट 1 पे दोनों में आ गया बिकॉज बोथ आर। अब इसका अभी चेक सेम आ गया क्यों हो रहा है पता है आपको? दोनों का एड्रेस चेक कर लेते हैं ना यार। सेम एड्रेस है दोनों ओके, तुरंत दिमाग की बत्ती जलाओ हाँ, और कंफ्यूजन हटाओ कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों का एड्रेस भी सेम होना चाहिए राइट। तो देख लेते हैं यार। एकदम सेम है। वैल्यू सेम है तो डुप्लीकेट दोनों का रिकॉर्ड होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये है आज के लिए। आज से आपको ये नहीं दूंगा, नहीं तो आप जाते हो सिर्फ ये वाला कर लेते हो बस राइट। तो अभी आपको वीडियो मिलेगा, टाइप से कीजिए, सोचिएगा गलती होगा कहाँ पे गलती की है वो आपको कैच करना है। ठीक है, क्लियर है सर? थोड़ा एफर्ट लगा के